we will remember our Lord and Savior Jesus Christ and we will go into the time of prayer. आए अजीज भाई बहनों सभी अपने मन और दिलों को तैयार कर लीजिए और ये वो समय जब हम अपने परमेश्वर अपने पिता अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, उनकी हजूरी में आएंगे और सारे लोगों को जो यहाँ पे जुड़े हैं इस समय, जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब पे फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्टेड है, जो यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होते हैं, उनके दास को विशेष करके प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Father God, we come before your throne of grace and mercy in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Father God. We thank you for the brand new day that you have given to all of your sons and daughters, Father God. We thank you for the wonderful weather that is outside, God, and the cool that has come into the environment and the atmosphere because of this weather, Father God. Oh, Father God, your word says that your mercy that renewed every morning, your mercy that new every morning. And so we thank you, Lord, for the grace that comes in the form of your mercy every morning, whether we are righteous or we are unrighteous, because you make the same sun shine on the wicked and the righteous. Father God, and on the throne of righteousness and justice, we glorify your name. We give you all the glory, for you are great and worthy to be praised. You deserve all the glory, Abba, Father, because power and might are in your hands, and wealth and honor come from you, Father God. Thank you for this day, Lord Jesus Christ. And as we begin our morning devotion, I surrender our senior pastor, Pastor Daniel, covering him completely with the blood of Jesus Christ. I surrender myself, Father, into your hands as I translate, covering myself too with the blood of Jesus Christ, Lord. And may you use both of us for your glory, Father God. May the works that we do here, standing on this sacred place of podium, Father God, where we exalt your name, from where we glorify your name, may your name be glorified to the highest, Lord, from the earth to the highest, Father. This is a prayer for this day. And also we surrender our beloved brothers and sisters who are watching us online right now through YouTube and Facebook, Father God. We plead for your divine mercy and grace and protection on each one of them, Father. We plead you remove every sickness and diseases from the midst of them, Father God. And if someone has not received you until now, Father, we pray you open their eyes so that they can receive you, and their entire household shall be saved, and they may attain salvation in the name of Yeshua, Father God. Thank you, Father God. Now the remaining time we surrender into your hands, Father God. When we pray, govern us and rule us and control us according to your will. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबों के साथ में एक बार फिर से एक नए दिन में। We are very happy to be connected with you once again on this brand new day. और परमेश्वर आपके जीवन में भला करे और आपको आशीष दे और आपकी अगुवाई करे, पूरे दिन भर आप सदा खुश रहें। May everything go well with you all, beloved, and may you be happy throughout the entire day. एक बार फिर से हम एक विशेष टॉपिक पर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर रहे हैं। So once again we are going to talk on a special topic from the Word of God. आज का वचन का वही टॉपिक है जो कल हमने आपके सामने बताया था। So we are just carrying on with the same topic that we preached on yesterday. क्या परमेश्वर हमारी मौत का दिन ठहराता है या वो निर्धारित करता है? Is God the one who determines our years and age? क्या हम लोग सचमुच में एक फिक्स हमारी तारीख है और हम उसी दिन मर जाएंगे? Is the date of our death fixed and will we die on the same date? बहुत से लोगों की सोच यही है कि हम तो मर जाएंगे, इसलिए मरना तय है, इसलिए अपनी मनमानी करना, अपने हिसाब से जीना है, चाहे कुछ भी करो, मरना तो उसी दिन है। And so many people are thinking like this, that yes, one day we need to die, so let's live our life according to our own हमने wishes. आपको कल बताया, अगर आपको याद होगा, कि सचमुच में परमेश्वर ने हमारे लिए वास्तव में एक अंतिम लाइन खींची है, रेखा खींची है कि उस अवधि तक हम जिंदा रह सकते हैं। And so yesterday, if you remember, I told you that God has drawn a deadline of a certain age. परमेश्वर सब कुछ जानता है। God knows all. जैसे अय्यूब 14 अध्याय के 5 पद में हमने आपको बताया था। Just like the book of Job says in chapter 14. मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं।
Days of man have been appointed. उसके महीने भी लिखे गए हैं, And even the number of his months. परमेश्वर ने ही बनाया है, And God has made it all. कोई उसे बदल नहीं And so सकता। no one can erase it. बाइबल कहती है हमारा भविष्य, हमारी जन्म और हमारी मृत्यु सब डायरी में उसके लिखे हुए हैं। So the Bible teaches us that everything about our birth and death has been written in the book of life. In the book. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान के लिए 120 दिन जीने के लिए एक बॉटम लाइन खींची है। And God appointed the days of man to be 120 years. लेकिन आजकल 120 मुश्किल है। But these days it is really difficult. इवन दाऊद ने कहा कि भैया 120 नहीं 70-80 साल ही हम लोग जी पाएंगे। Even David said, I don't, not 120 years, but we can live up to 70 or 80 years of age. उसने कहा कि 70 ही संभव है, 70 is possible. पर अगर हमारे शरीर में कुछ दम है, कुछ अच्छा खाया पिया है और पारिवारिक हेल्प हमें बहुत मिली या देश की हमें बहुत सहायता मिली है, उसकी वजह से शायद हम और ज्यादा जिंदा But जी लें। maybe then there are certain factors like the type of country you live in, the type of food you have, and your good health. These depends on how long you will पर live. सच तो ये कि हमारी मौत होना निश्चित हो गई है। But the truth is that we will die. मौत हमारी होती है और फिर उसके बाद न्याय होता है। We die and then we are judged. हमें पहले कभी मरना नहीं था। Earlier it was not so. We were not to die. बाइबल कहती है कि लोग 900 साल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1000 साल तक जिए हैं, Because in those days people used to live even until 900 years वे of कभी age. मरते नहीं And they हैं। never used to die. पर पाप आने की वजह से मरने But लगे। because of sin they had to die. परमेश्वर ने मनुष्य की मौत का एक दिन ठहरा दिया। And that's why God appointed a certain date. इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य के दिन गिने हुए हैं। That's why Bible teaches that his days are numbered. परमेश्वर को मालूम है And God knows that. कि हम कब मरने वाले हैं। When we would die. लेकिन आज बहुत खास बात पर हम बात करेंगे But today something important we are going to speak on, beloved. कि आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि ठीक है, परमेश्वर हमें अपने समय पे बुला लेगा। Yes, we will. Yes, it's okay if God calls us on our appointed time. अपने समय पे परमेश्वर हमें बुला लेगा। In His time. लेकिन एक चीज याद रखना है But still we need to remember one thing, कि beloved. कभी कभी शायद हम अपने जीवन में परमेश्वर के समय के ठहराए हुए होने से पहले भी चले जा But सकते हैं। sometimes we may die early, not the time that God has appointed for us. ये बात समझना जरूरी है। This we need to understand. सबके लिए परमेश्वर ने 120 साल दी कि जिंदा रह लो भाई। God wants everyone to live until ये 120 आशीष की years. बात And है। This is a matter of blessing. ये आपके लिए आशीष की बात है। This is a blessing for अब you. ये आशीष कमाना भी पड़ेगा। And now we need to earn this ये blessing. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसने 120 बोल दिया तो सब 120 साल तक जिएंगे। It's not like because God has said everyone will live until अब यहाँ 120 पर years of हमको age. बोना पड़ता, Now we need to sow. हमें कमाना We पड़ेगा। need to earn. हमें सचमुच में जिंदा रहने के लिए, ज्यादा जिंदगी रहने के लिए हमें बहुत देखभाल करनी पड़ती है। So we need to look after a lot of things just to live ऐसा long. तो है नहीं कि भैया परमेश्वर ने 120 साल तक बोल दिया है तो हम कुछ देखभाल नहीं करेंगे और जिंदा रह लेंगे। So it's not like just because God has said so now we don't need to work hard, we don't need to do तो anything. फिर क्यों जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी देखभाल क्यों करते Then हो? why do we need to take care of small babies? भाई परमेश्वर ने उनकी डेट उनकी दे रखी है 120 See, साल it तक। is God who brought them. That why we need to take care of them. 120 साल तक वो जिएंगे। And they would even live until 120 बच्चे पैदा years. कर दो और 120 साल तक जिएंगे। Just give birth and they will live up to मम्मी 120 पापा उनकी years. देखभाल ना And करें, parents need not उन्हें care. कोई ना They खिलाए, need not be fed. ऊपर वाला खिलाएगा, God will वो provide for संभालेगा। them, and He will take care of them. आप क्या सोचते हो कि वो 120 साल तक जिएंगे So do फिर? you think like this they will live so long? नहीं, हम उनकी देखभाल करते हैं। No, no, no. We need to take care of हम them. उनकी जैसी देखभाल करते हैं, As we would take care of जितना them, अच्छा खिलाएंगे as we would feed उतना them, अच्छा बॉडी बनेगा। that is the way they उसी should be. हिसाब से They उनको would be. लंबी उम्र मिलती है And that is how they would live long. और बहुत सी चीजें जो उन्हें सिखानी पड़ती है। And then many things we need to teach them. उन्हें ना केवल खाना खिलाना है, Not only we need to उन्हें feed them, शिक्षाएं देना but है, we need to teach them too. उन्हें वास्तव में उन्हें अच्छा बुरे का ज्ञान भी सिखाना And है। we need to instruct them on good and अब wrong. ऐसे नहीं कि हम उन्हें सिखाएं नहीं कुछ भी। It's not that we won't teach them अगर anything. उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो गलती करेंगे, Because if we want, they would do wrong. मूर्खताएं करेंगे, They would do folly. अपराध करेंगे They would sin. और ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकते And हैं, they will maybe bring in more problems. जल्दी मर सकते They हैं। may even die young. तो कहने का मतलब क्या है? So what I'm trying to say, आज हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर वास्तव में नहीं चाहता है कि हम जल्दी मर जाएं।
God does not want any one of us to die early. परमेश्वर ने तो लंबी उम्र दी है सबको, Because God has given a long life to each एक one of टाइम us. फ्रेम भी बनाया And He's है, appointed a specific लेकिन time. कुछ लोग उससे पहले चले But जाते some हैं। people are dying early. वो सब क्या लापरवाही है, What is the carelessness वो behind क्या them? और गलतियां हैं, What are the mistakes behind और it? क्या वो वास्तव में सावधानियां हैं, And are they really being careful वो about it? क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लंबे जी लें। So what are those ways according to which we can live long? तो आज हम सीखने जा रहे हैं, We will learn this today. परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। We will see from the word of God. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें लंबी उम्र देना चाहता है। So the first thing we will learn how God wants to give us a long life. सबसे मुख्य बात यही है The pivotal thing is कि आपको और मुझे परमेश्वर का डर मानना जरूरी है। we need to be God fearing. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, When we read the word of God. नीति वचन 10 अध्याय के 27 पद, In the book of Proverbs, नीति chapter वचन उसका 10, 10 अध्याय के verse 27 पद, 27, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। the fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked shall be shortened. बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का भय माना जाए, जिससे आयु बढ़ती है और दुष्ट लोग जीवन का थोड़े ही दिनों में वो मर जाते हैं। Amen. अब ये बात आपको समझना है कि मुझे कैसे लंबी उम्र मिलेगी, So now we need to understand how can we get a good long life, कि हम जल्दी ना मरे that we don't die quickly, और हमें लंबी उम्र भी मिले और हष्टपुष्ट जीवन भी हो। and we get a good long and healthy life. जीवन सुंदर है, उसमें रहना अद्भुत बात है, It is an amazing thing if the life is beautiful. और ये कितना भी कठिन या अंधेरा क्यों ना हो आपके जीवन No में, matter how much dark and gloomy your life is, जब तक हम जीते हैं और सांस लेते हैं, as long as we live and we breathe, हमेशा आशा होती है we always have this और hope. हम अपने सपनों तक पहुंचने के लिए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश We करते have हैं। this hope of reaching to our destination of dreams. जीवन ईश्वर का एक अनमोल उपहार की तरह है, Life is a beautiful gift from जिसका God. उपयोग हम अपने आसपास के चीजों के बारे में अधिक से अधिक करते हैं, And we use it. और हम परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि When we get the wisdom and strength from the Lord, we can live a good life. ताकि हम इस जीवन को सही से प्रयोग कर So सकें, that we can live a good life. हम अपने परिवार में और अपने प्रियजनों के साथ दुनिया में और भी अच्छा सा समय बिता सकें। That we can really spend a quality time with our friends and family. परमेश्वर की यही इच्छा है This is और the will of God. इसीलिए वो हमें आज प्रेरित कर रहा है। That's why today He wants to inspire us. लंबी उम्र का मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं, Long life does not mean only a strong body और ना ही आर्थिक रूप से सक्षम होना, and that you are financially successful. बल्कि इसमें मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी शामिल है। But it also involves spirituality and mentality. यदि आप पृथ्वी पर अधिक समय तक जीना चाहते हैं, You want to live longer on earth. तो यहाँ बाइबल के कुछ सुझाव हैं So Bible gives us some suggestions जो आपको जीवन के उस फव्वारे की ओर ले चलेगा, जिससे आप हमेशा जीते रहेंगे। which will take you towards a fountain of life. तो कैसे होगी? सबसे पहली चीज, So how would these things be possible? नंबर 1 जो हमने पढ़ा नीति वचन 10 का 27 We पर, already read the number one point in the book of Proverbs परमेश्वर chapter 10. का भय मानने से आयु बढ़ती है। We have a long life when we fear God. अब किसी की बहुत लंबी उम्र अगर हो Suppose someone has a long life और वो परमेश्वर से ना डरता हो, and he does not fear आप कहोगे God. पास्टर ये फिर क्यों, Then you may ask, Pastor, how is it ये क्यों possible? भैया लंबी उम्र जी रहा है, Why is he living a long ये तो life? चर्च नहीं जाता, He's not even coming to ये the church. ईसाई भी नहीं He's है, not even a Christian. मसीह भी नहीं Not है even a believer. और लंबी उम्र है। But still has a long life. फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, Then I want to पूरी remind you, दुनिया के लिए परमेश्वर ने 120 साल की अवधि दी है, for the entire world, God has appointed this time, और 120 ये भी years. लिखा है कि ये भी लिखा है कि 70-80 साल तक भी जी सकता And है। also we can live up to 70 or 80 फिर years. आगे लिखा है कि अगर उसमें बल हो, ताकत हो तो जी सकता है। And if that person has mind and strength, then he can go on. कभी कभी परमेश्वर किसी को लंबी उम्र इसलिए देता है क्योंकि भाई चलो ठीक है, उसका खान पान शरीर में दम है तो वो मैनेज कर रहा है। And sometimes some people live long because of certain factors like good climate, good country, good food. उसके पास पैसा है, He has money. लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति और आत्मिक स्थिति ठीक है। But doesn't mean that his mentality and spirituality are good. और
एक बात याद रखें, अगर उसने सचमुच में 100 साल भी ले लिए And suppose he even lives up to और 100 years, 120 साल भी ले लिए, and maybe even 120. ये तो उसके लिए आशीष की बात तो है। It's a matter of blessing for him. लेकिन अगर उसने उद्धार नहीं पाया, But if he has not attained उसने salvation, मुक्ति नहीं पाई, and he's not got तो freedom, वो 120 साल क्या, वो 220 साल भी जी ले, then he can even live up to 200 लेकिन years, ऊपर तो वो अनंत काल की मौत का सामना ही But- करेगा। but he will face eternal और destruction. हाय ऐसे मनुष्य के लिए जिसको इतना समय भी मिला पर उसने जीते जी अपने को बचाया नहीं। And cursed is the man who got a long life but did not live और according to the बाइबल will of कहती है God. मनुष्य सारे जगत को प्राप्त भी कर ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो क्या कमाया And उसने। Bible says even if you gain the whole world but lose your soul, what did you earn जिन actually? लोगों का वास्तव में नेचर स्वभाव बदलने वाला नहीं है, People who don't want to change themselves, वो वास्तव में परमेश्वर उन्हें बहुत चांस देता है। God really give them chances. वो परमेश्वर उन्हें चांस देता है कि शायद ये अभी भी बदल जाएं, That maybe this person will change. शायद वे लंबी उम्र पा रहे हैं, Maybe this person in the long life. शायद उनके शरीर भी हष्ट-पुष्ट होंगे, Maybe they have a strong body. शरीर हो सकता है उनके पास पैसा भी हो, Maybe they have good money too. आप देख के परेशान हो रहे हो, And you might be wondering. पर बाइबल कहती है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर उन्हें मौका दे रहे The हैं, Bible teaches it is happening because God is giving them क्योंकि chances. मरने के बाद फिर कोई भी चांस उन्हें नहीं मिलेगा। Because after death there would be no chances. इस दुनिया में जीते जी ही आपके लिए चांस है कि आप मन फिरा सकते हो और उद्धार पा सकते हो और तब स्वर्ग जा सकते हो। So as long as you are on earth, only you have the chance to attain salvation and go to इसलिए heaven. बाइबल कहती है उन मसीहों के लिए कि परमेश्वर के डर में समय बिताओ। That's why Bible teaches us live in the fear of God. बाइबल कहती है कि आप अपने आप को परदेसी समझो और डरते हुए समय बिताओ, Think yourself to be a sojourner and then live your life. क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है वो परमेश्वर से डरने वाला जीवन होना चाहिए। Because we need to be constantly in the fear of हमें God. beloved. हमें सचमुच में उसको देखकर जिंदगी जीना We need चाहिए। to look at God and live. कुछ लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं, And some people are not even scared of God. वो वास्तव में परमेश्वर की परवाह नहीं करते। They don't even think about God. फिर ऐसे लोगों के लिए खतरा है, Then such people, there is a risk for them. ऐसे लोगों के लिए जल्दी मौत आती है। And they may die quickly. बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। This is very important, you need to understand. वे हकीकत में शारीरिक मौत और आत्मिक मौत दोनों का उनके जीवन में हानि होती है। So this kind of people, they have to face spiritual as well as physical death. तो इसलिए पहली चीज, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं So if you want to live long, तो आप परमेश्वर का डर मानना सीखो। then you need to be scared of God. जब आप परमेश्वर से डरते हो Because when you have fear of God, तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा, then you don't need to fear आप anyone. मौत से भी नहीं Not डरोगे। even would you be scared of death. आज बहुत लोग कोरोना से जो मरे हैं People who have died because of corona, वो ज्यादातर कोरोना के डर से मरे, they have died because of the fear of corona. कोरोना से नहीं मरे Not because of the virus, पर कोरोना के डर से मरे। but because of the fear of the वो virus. डर इतना समा The गया fear was too much कि उन्हें हद से ज्यादा सिम्टम दिख रहे हैं अपने आप, that they started seeing symptoms in them. उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है लेकिन डर इतना है कि अपने आप को उतना डरा रहे हैं Even though they might not be having big problems, but they are just scaring और कहते themselves. हैं जो डरा वो मरा। And it's being said, if you are scared, you will die. बहुत से लोगों ने कोरोना से सचमुच में लड़ाई लड़ ली But some people fought with corona, और वो घर में ही रहे, and they stayed at home. अस्पताल नहीं They did गए, not even go to the तो hospital. वो आज भले चंगे हैं Still they are okay today. क्योंकि वे डरे Because नहीं। they were not scared. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आप डरते नहीं हो किसी चीज से। We thank God when you're not scared of बाइबल anything. कहती है केवल उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात पहुंचाता है। Bible teaches be scared of the one who destroys both the body and the soul. हमें उससे डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचाता है। Because God is the only one who can destroy both हमें of उस the body and परमेश्वर से soul. डरना We चाहिए। need to be scared of God. हम अकेले में क्या करते हैं, What do we do when we are मन में alone? क्या करते हैं, What do we think? हम किसके संग क्या क्या करते What are हैं, we doing with people around us? हमेशा याद रखना है। Remember this. हमें किसी की कोई चीज नहीं चुराना है। We don't need to rob anyone of anything. चोरी अक्सर कब होती है,
When do you actually steal? जब कोई नहीं होता, When there is no one around. सोचते कि कोई देख नहीं रहा And we think no one is watching तो us. भी चोरी कर लेते So हैं। let's rob. अगर उसे पता हो परमेश्वर देख रहा है But if that person only knows God तब is वो watching, कभी चोरी नहीं then that करेगा, person will never steal. क्योंकि उसे मालूम है कि सचमुच में परमेश्वर देख रहा है। Because he knows really कोई God is गुनाह watching. नहीं करोगे। And you will never sin. अगर आदम अब्बा को ये बात डर होता कि परमेश्वर देख रहा है और मना किया तो वो कभी फल नहीं खाते, If only Adam and Eve were God fearing, they would not have sinned. इसीलिए तो वो मर गए, That's why they died. क्योंकि वे परमेश्वर का डर नहीं रखे। Because they did not have the fear आज of आप God. भी परमेश्वर का डर रखोगे And today you have the fear of कि God. परमेश्वर देख रहा है, God is watching. तब आप ठीक सब कुछ सही करोगे। You will do everything right. आप परमेश्वर को अच्छी तरीके से ये जान लीजिए कि वो आपको देख रहा है। Just know one thing, beloved. God is always watching us. मनुष्य कभी भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता, And so we cannot hide ourselves from God. उसके विचार भी नहीं छिप Not सकते। even our thoughts. वो कहीं छिप जाए परमेश्वर को दिखता Even if है, you hide anywhere, God will उसकी find आंखें you. हमेशा खुली रहती Because हैं his eyes are always open. और वो सब कुछ देखता And he रहता है। sees everything. तो सबसे पहली चीज ये बात जान लीजिए, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है, उससे छिप नहीं सकते, इसलिए उसको देख के जिंदगी जियो। So the first thing we need to get loud and clear in our minds is that God is watching everything and we cannot hide from अक्सर him. चोरियां, अक्सर बुरे काम कब होते हैं? When do you think these crimes and sins take place? अंधेरे में, In the darkness, अकेले में, in private, छिपकर, in secret, ऐसे होते हैं। like this. ये जो काम होते हैं वे इसलिए कि वो लोग ये सोचते हैं इंसान का तो डर, पुलिस का तो डर, पर परमेश्वर का डर उन्हें नहीं है। And such people who do such wrong things, they are not scared of God, but they are scared of police. इसलिए ये चीज सबसे बड़ी गलत है। हमें अपने परमेश्वर का डर मानना है कि वो हमें देख रहा है। But the thing should be that we need to be God fearing instead of fearing people. परमेश्वर हमें देख रहा है, God is watching us. वो हमें देख रहा है, इसलिए मुझे और आपको सचमुच में उसका डर मानना चाहिए। Because he is watching us, so we need to have the अगर fear हम of God. परमेश्वर का डर मानेंगे If we have fear for God, तब क्या करेंगे? then what we will do? हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो उसकी नजरों में गलत हो। We will not do anything that he does not like. इसीलिए उसने तो आज्ञाएं दी, That's why he gave us commandments. उसने आज्ञाएं दी, कहा कि तुम ये काम ना करना। He told us don't do certain things. उसने पहली आज्ञा इंसान को दी, The first commandment that he ये gave, फल ना खाना, do not eat this fruit. पर उन्होंने खा लिया। But they ate. अक्सर घर में बच्चों को मना करते हैं कि बच्चों तुम ये अचार के डिब्बा मत छूना। Many a time we even instruct our children not to touch certain things in the house. जब वे घर से बाहर चले जाते हैं माता पिता, But when parents go out, तब क्या करते हैं? then what do these वो कहते kids हैं मम्मी do? पापा है ही नहीं, Parents are not at home. आओ हम लोग ऊपर चढ़ जाएं। Let's climb up. और फिर हम बच्चे क्या करते हैं, वो जार को उठाने का कोशिश करते And then हैं। they try to pick up the jar. उसमें रसगुल्ले भरे हुए हैं, Maybe it is full of sweets. उसमें बहुत ही अच्छा अचार रखा है, Maybe it has a good pickle. वो उसको inside of हैंडल it. नहीं कर But पाते, they are not able to handle that big jar. वो उससे टूट जाता है, And the वो jar गिर जाता breaks. और फिर वो इनके अंदर डर समाया And जाता then है। they are full of fear. जो लोग सचमुच में परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, The people who are always working against God, वे डर का जीवन जीते हैं, they live a life वे of fear. छिपते हैं परमेश्वर They से। always try to hide themselves. आपको हम सच बता रहे हैं, आदम हव्वा जैसे छिप जाते हैं, Really, I am telling you, like Adam and Eve were trying to वैसे ही hide. आज दुनिया में लोग घरों में छिपे हुए That's why हैं। people are hiding themselves in the वे houses. चर्च नहीं They जाते, are not coming to the वे church. बाइबल नहीं They पढ़ते, don't read वे Bible. प्रार्थना नहीं They करते, don't even pray. क्योंकि उनके अंदर एक दोष सी जीवन है, Because they are living a guilty life. क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। Because they have sinned. उन्हें लगा कि परमेश्वर देख नहीं रहा है। And they're thinking God is not watching. लेकिन जब उन्होंने पाप किया But when they sinned, और वो परमेश्वर की शांति निकल गई, and the peace of God परमेश्वर left की them, खुशी निकल गई, and the happiness of God left परमेश्वर का them, आनंद निकल joy गया, of God left them, परमेश्वर का चैन निकल गया, comfort of God left परमेश्वर them, की आत्मा निकल गई, spirit of God left them. तब वो मर गए। They died. वो मरे हुए हैं, They are like dead वो people. खाली हैं, They are empty from इसलिए उन्हें inside. शर्म आती है, That's why they are ashamed. इसलिए वो चर्च नहीं आते, That's why they don't come to the church. उन्हें शर्म आती है They are ashamed प्रार्थना करने से,
to pray, उसका नाम लेने to से take his उन्हें name. शर्म आती They है। are वो ashamed. जानते हैं कि वे नंगे हैं। They know they are naked. आदम हब्बा नंगे थे। Adam and Eve were naked. वो देखने लगे कि अरे हम तो नंगे हैं। And so they looked at each other and they found themselves to be पहले वो naked. इतने भोले थे कि उन्हें पता ही नहीं था। Before they were so innocent that they did not even know. अभी सोचो हमारे देश में कितने जानवर हैं, Now think about this. We have so many animals in our सब नंगे country. रहते हैं। They all are naked. वो किसी से नहीं But शर्माते। they are not ashamed. लेकिन सोचो अभी उनकी अकल आ जाए But suppose they get that mind. और वो एकदम कहने लगे हम नंगे भैया, हम कपड़े पहनेंगे। Then they would be in a hurry to dress themselves up. तो सोचो आज कितनी फैक्ट्रियां बन जाएंगी, Then imagine about how many कितने factories would टेलर्स be पैदा made. हो जाएंगे, How many कितनी tailors would be कंपनियां there. चालू हो जाएंगी। How many companies हर would जानवरों के begin. कपड़े भी बिक रहे Because they हैं now need to make clothes for और animals. सारे जानवर आके खरीद रहे हैं कपड़े। And animals are coming and उन्हें buying. शर्म लग रही है। Because they are ashamed. जैसे इंसान शर्माता वैसे वो भी Just शर्माएंगे। like a man is ashamed. जानवर इतने भोले भाले हैं, But animals are so innocent. उन्हें कुछ पता ही नहीं है। Don't know anything. इसी तरीके से इंसान भी था, That's how a man पर was. इंसान दुष्ट हो गया, But man became evil. अपराध किया, He sinned. तब उसे पता चल गया And that's how he हम knew नंगे that we are हैं। naked. और नंगा आदमी परमेश्वर से छिपता And है। a naked man is scared of जितने God. भी लोग आज परमेश्वर से छिपे बैठे People हैं, who are hiding from God. जो परमेश्वर का नाम नहीं Who are not लेते, even taking the जो name of परमेश्वर से God. प्रार्थना Who are नहीं not करते, even praying जो to God. भजन नहीं Who are not करते, even singing जो and वचन praising. नहीं Who are not पढ़ते, reading the word of God. जो चर्च नहीं Not जाते, coming to the church of वे God. हकीकत में अपने आप को नंगा समझ रहे हैं। In reality, they consider themselves to be nude. वो शैतान के पास तो जाना पसंद करेंगे, They love to go to Satan. वो जानवरों के पास They पसंद love करेंगे, to go to कहीं भी animals. जा सकते They may हैं, go anywhere. पर परमेश्वर से छिपेंगे। They will hide from God. अरे आप परमेश्वर से छिप रहे हो। You are hiding from दाऊद God. कहता है कि मैं चाहे गुफा में चला जाऊं तो भी तू वहां है, And David says, even if I go into a den, you are still there. मैं पहाड़ों पे चला जाऊं तो भी तू वहां On है, top of the mountain, you are there. जब मैं समुद्र में चला जाऊं तो भी तू वहां है, Under the sea, you are तू there. हर जगह है। You are everywhere. मैं तुझसे छिप नहीं So सकता। how can I hide from लेकिन you? कितनी मूर्खता है आदम की, वो छिपने की कोशिश कर रहा है, But man is so stupid that he's trying to hide वो himself. झाड़ियों में छिपने की He's कोशिश, trying to hide behind the bushes. सब कुछ दिख रहा है, But everything can be seen. परमेश्वर को दिख रहा है, God can see पर हम everything. अपने आप को तसल्ली मिटा रहे हैं, उससे छिप रहे हैं। And we are trying to give ourselves wrong hope that we can हम hide from दुनिया God. में बहुत सी चीजें अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, We are wearing a lot of things on हम us. संसार में चले जाते We हैं, go into the हम world. पापियों के पास चले We जाते go into the हैं, हम midst of बहुत दूर sinners. चले We जाते go हैं, away from God. ये सोचकर परमेश्वर देख नहीं रहा। Thinking God is not watching. अगर आपको याद है कि बाइबल में लिखा है कि योना जो है परमेश्वर से भाग रहा था, If you remember, Jonah, the prophet, was trying to hide from परमेश्वर ने God. उससे कहा जाओ तुम नीनवे में प्रचार But करो, God told him, go to Nineveh and पर preach. नीनवे के लोग बहुत बुरे थे। But because the people of Nineveh were योना evil, योना चाहता था कि वो मर जाएं, so Jonah wanted them to die. इसलिए वो वहां से निकल पड़ा। So he escaped from there. ओ नीनवे ना जाकर के वो तरशीश को चला But गया। instead of Nineveh, he went to Tarsus. फिर क्या हुआ? Then what वो happened? सोच रहा था परमेश्वर ने देखा नहीं And he है, was thinking, God is not watching पर me. परमेश्वर ने देख But लिया, God was watching उसका him. जहाज हिला दिया, And he shook his उसको boat. उसको जहाज से फेंकवा दिया, And he drowned into the sea. उसको मछली के पेट में डलवा दिया। And the big fish took him inside. परमेश्वर कुछ भी कर सकता So है, God can do वो सब anything. कुछ देखता He है, is watching आप उससे everything. भाग नहीं And सकते, you cannot run away from God. आपको परमेश्वर देख रहा है। And he's watching you even right धन्य है वे now. जो परमेश्वर का डर मानते So हैं, blessed are the people who fear क्योंकि वे God. लंबी उम्र प्राप्त they will get a good करेंगे, long वे life. लंबी जिंदगी They will have प्राप्त a long करेंगे। life. ये सबसे महत्वपूर्ण This चीज is है, the most significant इसको thing. समझने की कोशिश To करो। understand this. परमेश्वर का डर बहुत इंपॉर्टेंट है। Fear of God is important. जो लोग परमेश्वर से डरेंगे People who would be scared of वे God, परमेश्वर के पास आएंगे, they would come to God. वे सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना They would करेंगे, really pray to वे God. परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, They will ask for वे परमेश्वर forgiveness. को जीवन अपना They समर्पण would कर देंगे। surrender their lives to God. वे जानते हैं परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया। Because they know God has watched everything. क्या होता है So what happens then? जब आप अपनी गलतियों को मानते नहीं हो, When you do not accept your mistakes, लेकिन जब आपको प्रूफ कोई दिखा दे, but someone shows you the proof. सीसीटी कैमरे की सारी आपको वीडियो दिखा दे, You see the videos through CCTV. एकदम आप फंस जाते हो, You are stuck. एकदम आपका चेहरा उतर जाता है, You have a red एकदम घबरा You जाते are हो, caught. एकदम मान लेते हो, And you then accept. आपके पास कोई बहाना नहीं Because चलता, then you have no क्योंकि excuse. आप ही थे जो कर रहे थे। Because you were the तब one आपका who was doing मुंह बंद it. हो जाएगा। Then your mouth would be shut. फिर क्या होगा? Then what will happen? बाइबल कहती है कि स्वर्ग में जब आपका न्याय होगा Bible says when in the heavens we would be judged. तो आप
के सारे कारनामे दिखाए जाएंगे। then all your deeds would be shown. आप सोचोगे कि मैंने क्या किया है। And you would think, what have I done? बहुत से लोगों ने बलात्कार किए, भूल गए हैं वो। Some people have raped and they have forgotten बहुत it. से लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को पैदा होने से पहले मार दिए हैं, Some have adopted infanticides. और वो बहुत ज्यादा अपने आप को इतने साल पार हो गए, जिंदा रह लिए, अपने आप को घमंड में जी रहे हैं। And because no one checked them, no one judged them, so they are full of pride. वो सोच रहे हैं कि हाँ बहुत समय साल तक जी लेंगे, And they think we can still go on living. पर ये चीजें आपको लग रहा है, But this is what you are ये thinking. अच्छी बात नहीं And है। this is not something good. भले परमेश्वर आपको जिंदगी दे रहा Even है, if God is giving you a life, लेकिन आपकी आत्मिक हानि है, but it is a spiritual loss for आत्मिक you. तरीके से मरे हुए हो। That means spiritually you are dead. आपको अनंत जीवन पाने की जरूरत है। And you need to get eternal इस life. दुनिया में भी लंबी उम्र पालो, Even in this world, और उस दुनिया में भी and लंबी even पालो। into that world. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज Very है। imperative. आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर देना You चाहिए। need to surrender your life जो to गुनाह God. आपने किए हैं, The sins that you have जो committed, चोरियां आपने की the हैं, stealings that you have done, जो हत्याएं आपने the की, murders that you have done, जो आपने लोगों के संग सचमुच में धोखा दिया है, the betrayals that you have done, वे सब भूलते जा रहे हो। you are just forgetting them. आपने जो गुनाह किए हैं वो आप भूलते You जा रहे are हो। forgetting your sins. आपने हो सकता है किसी की भरपाई कर दी हो, आपने कहा मैंने तो भरपाई कर दी And है, maybe you are thinking, I am already made up for this लेकिन sin. परमेश्वर की दृष्टि में तो अभी भी पापी हो। But in the eyes of God, you are a sinner. आपकी आत्मा तो मरी हुई है। Spirit is dead. अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करो, Surrender your life और to फिर God. ऐसे जीवन जियो कि वो देख रहा है। And then live in such a way that बहुत he's से लोग ये watching. जीवन ऐसे नहीं जीते कि वो देख रहा है। Some people are living like God is not अगर आप watching. परमेश्वर को दिखाने के लिए जीवन जियोगे, If you want to live a life worthy आप of वास्तव God, में लंबी उम्र you पाओगे। will get a long हमेशा life. दिमाग में रखा प्रभु देख रहा है। Always keep in mind God is watching. चलते फिरते उठते बैठते ये Walking, देखो परमेश्वर talking, देख रहा है। eating, sitting, seeing, God is watching. और आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो नहीं करना है। And always remember what you should not do what God is जो not like. चोटें पहुंचाती है वो काम नहीं करना है। What hurts him, we need not do those ये things. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, Very important. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Very important. इसलिए मुझे और आपको ये बातें जानना जरूरी है। That's why we need to learn these things. परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में हमें उसका डर मानने से हमारी लंबी उम्र मिलती है। Fear of God brings good long life. अब दूसरी क्या चीज है, Now what's the second thing? दूसरी क्या हमारे लिए तरकीब दी गई है, What's the second या technique? कौन सा तरीका है जिससे हमें लंबी उम्र मिलती है। Which technique can we adopt to have a good long life? नीति वचन उसका 3 अध्याय का 1 पद, When we come to the book of Proverbs chapter 3, नीति वचन उसका 3 अध्याय के 1 पद में verse 1, उसमें क्या लिखा है, ए मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. दूसरा पद कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। For length of days and long life and peace shall they add to you. आपको क्या सीखने को यहाँ मिल रहा So है, what are we learning from here? यहाँ सीख रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से मेरी आयु बढ़ेगी। We get a long life when we are obedient to the word of God. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। And we need to be obedient to God. इंसान मर गया क्योंकि उसने कहना नहीं माना। Man died because he did not obey. परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाना, God said, do not eat this fruit. पर उसने क्या किया, But on the contrary, he ate that फिर भी fruit. वो फल खाया, मर गया। He ate and he died. आज परमेश्वर हमको 10 आज्ञाएं दिए हैं, Today God has given us 10 commandments. लेकिन इंसान फिर भी उन 10 आज्ञाओं को उल्लंघन But कर रहा है the man is still breaking it. और फिर भी वो मर रहे हैं। And so he is dying. क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। Why? Because he is not obeying the commandments of इंसान God. आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति दोनों से मर रहा है। Man is dying intellectually and spiritually. आप जिंदा हो, मौका मिल दे रहा है परमेश्वर, You are alive because God is giving you a chance. और वो इसलिए दे रहा है कि आप मन फिरा लो And he is giving you so you may repent और आप उसकी आज्ञा का पालन करना and सीखो, obey. तब जिंदा ज्यादा रहोगे Then you will live long. और लिखा अच्छे दिन भी And मिलेंगे। then you will even see good days. व्यवस्था 4 अध्याय के 40 पद में लिखा है, In the book of Deuteronomy chapter 4, व्यवस्था 4 अध्याय के 40 पद में लिखा है कि तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश परमेश्वर तेरा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों।
Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments which I command you today, and it shall may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days upon the earth which the Lord your God gives you forever. बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें बहुत आज्ञाएं दी हैं। So Bible says God has given us a lot of commandments. 10 आज्ञाओं के अलावा भी परमेश्वर ने और भी आज्ञाएं दी We हैं। have more than 10 commandments. नए नियम में तो मरकुस की किताब में 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तो एक ऐसी आज्ञा है जो कि सब कुछ पूरा कर देती है। But when we come to the book of Gospel according to Mark, we have a commandment which fulfills all the other commandments. पुराने नियम में पहली आज्ञा थी कि ये फल ना खाना, In the Old Testament, the commandment was to not eat that fruit, लेकिन इंसान ने तोड़ दिया। but man ate. लेकिन हम देखते हैं मिडिल एज में But in the Middle Ages, हमने ये देखा कि परमेश्वर 10 आज्ञाएं दी, God gave 10 commandments. वो भी इंसान ने तोड़ दी। That also man broke. तब यीशु मसीह ने अंत के दिनों में एक अंतिम हमारे लिए आज्ञा दी है, But then in the last days, Jesus has given us a last अपने commandment. परमेश्वर से सच्चा प्यार करना Love your God और लोगों से अपने समान प्यार करना। and love people according to. अगर ये कर लेते हो, And if you do this, प्यार कर लेते हो, if you love, तो आप सारी आज्ञा का पालन कर लेते you हो। will fulfill all the commandments. अब इसमें सबसे प्यार करना है, Now here you need to love everyone. चाहे दुश्मन क्यों ना हो, Even if it's an उससे enemy, प्यार करना you पड़ेगा। need to love him. बाइबल सिखाती है दुश्मन से भी प्यार करना। Bible teaches love your enemies. अगर आप सचमुच में दुश्मन से प्यार कर लेते हो, If you can really love your enemy, तब आप सचमुच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते then it means you are fulfilling the law of the हो। ये God. बहुत जरूरी है। It's very आप important. आप बाइबल पढ़ सकते हो, You can read the word आप of प्रार्थना God. कर सकते हो, You can pray. चर्च जा सकते You can हो, come to the church. दान दशमांश दे You सकते can हो। offer. ये कठिन है, It is difficult, लेकिन फिर भी कर लेते हो, but still you do it. आप बहुत बढ़िया हो। So it's very good. लेकिन अगर आप मेन काम नहीं कर रहे हो, But if you are not doing the main work, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, you are loving God, पर इंसान से प्यार नहीं कर but you रहे are not loving हो, men. उसको माफ नहीं कर You रहे are हो, not forgiving उसको him. क्षमा नहीं कर You are रहे not forgiving हो, उसकी him. सह नहीं You रहे are not हो, bearing उसका with him. इंतजार नहीं कर रहे You हो, are not waiting for him. तब ये भी गुनाह है। Then it's a sin. आज्ञा नहीं मान रहे हो, That means you are not obeying. आपको प्यार करना पड़ेगा You दुश्मन से need भी, to love your enemies too. चाहे वो कितना भी हानि पहुंचा No रहा हो। matter how much harm they are doing to you. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज This है। is very important. यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, People were troubling Jesus. हालांकि यीशु जानबूझकर अपने आप को सतवाने आए Even though Jesus came for that particular thing. और वो दुख उठाने आए, मार खाने आए, And he came to suffer. पर उन्हें भी लग रहा होगा But he must be thinking जिनको उन्होंने somewhere चंगाइयां दी, that the ones he healed, जिनको रोटियां खिलाई, the ones he fed, आज वो भी पत्थर उठा के they मार are रहे also हैं, persecuting वो him. भी जो है भीड़ के साथ दे रहे हैं। They are also one with the crowd. क्या बुरा नहीं लगता होगा? So don't you think Jesus क्या must मूड have felt ऑफ bad? नहीं होता होगा? Jesus must have been खिसियाहट नहीं आ रही discouraged. होगी? Jesus would have been felt agitated too. लेकिन यीशु मसीह के अंदर फिर भी उनके इस प्रति प्यार था। But Jesus had love for them. उन्होंने एक ही बात की, हे पिता इन्हें माफ कर दे, And he told them, please इन्हें forgive क्षमा them. कर They दे। forgive them, यीशु Father मसीह ने God. किसी को भी नाश नहीं किया, So Jesus did not destroy किसी को anyone. ऊपर भी बम नहीं गिराया, He did not throw atom उनके bomb on पास anyone. पावर थी, Even though he had वो power, फूंक दे तो सब मर if he जाते, would just breathe, everyone would पर उन्होंने die. प्यार But दिखाया, he showed love. सिर्फ प्यार दिखाया। Only love. कलीसिया कितनी बुरी थी, The church was so bad. आपको पता है कि पूरा संसार परमेश्वर के खिलाफ था, You know, the whole world was against God. पर यीशु ने उससे प्यार किया, But Jesus loved. प्यार करके कलीसिया को सचमुच में बनाया है, And through his love, कलीसिया के दिल को जीता है, he won the heart of church. तब जाकर के कलीसिया आज दीवानी है यीशु That's की। why today church is mad for Jesus. आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी पत्नियां उनसे बहुत उनकी सेवा करें और उनका आदर करें, Many men may want their wives to love them and respect them. परंतु वो कभी प्यार नहीं करते, But they themselves don't love. वे जबरदस्ती करते हैं उनके They साथ, try to force वे that love. धमकी देते हैं, They threaten वे them. मारते They हैं, beat them. वे बहुत ज्यादा सताते हैं, They even trouble them. उनके लिए कुछ देते नहीं, They don't give them anything. नौकरानी समझते हैं, They consider them like पैरों की servants, जूती समझते like हैं doormat. और सोचते हैं कि वे आपका आदर करें, बहुत सम्मान And then करें। they expect you to even respect them. असंभव है It's impossible. जब तक आप उनसे प्यार नहीं करेंगे। Unless you love them. प्यार कितना करना चाहिए? And how much you need to love अपनी them. जान देने तक More than your life. ऐसा प्यार करना This kind है, of ऐसा love. ख्याल रखना This है, kind of concern ऐसी need to जरूरतें have. पूरी This kind of करनी है। need need to be met. कुछ लोग अपनी पत्नियों से जान बोलते हैं, जाने मन बोलते हैं,
Some people address their wives as darling and sweetheart. लेकिन वक्त आ जाए तो उनकी जान लेने को तुले। But if a time comes, they may even take their life. शब्दों में नहीं होना है, So words should not be, क्रियाओं में होना है। love should not be in words but in आप action. सचमुच में उनको मोहब्बत करो, Really, you need to love them from heart. केवल पत्नियों से नहीं, And not only to love wives, हर एक इंसान से but to everyone. सबसे प्यार करो, You need to love everyone अपने समान। like your own self. आप ये आज्ञा मान लोगे, If you obey this word, आप देखोगे कि जिंदगी बदल जाएगी। then your life will change. कोई आपके संग बुरा कर रहा है, If someone is harming you, आप उसके संग भलाई करो, you do good to them. ये बहुत जरूरी है। It's important. आपको मालूम है इन दिनों में हम पास्टरों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ फूड खाना दे You रहे know, हैं। in these days, we are distributing some basic needs to basic amenities to the pastors हमें मालूम है बहुत जरूरतमंद पास्टर, because we know they are really needy people. लेकिन कभी कभी कुछ जरूरतमंद पास्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें बहुत चोटें पहुंचाई हैं But some people, they have hurt me a lot और उन्होंने बेइज्जती भी की है। and they have insulted me. आज भी also. वो बुरा सोचते हैं, And today also they think bad of me. लेकिन जब बांटने का मौका आया But when it came to तो distribution, मनुष्य के नाते हमने सोचा हम उनको नहीं देंगे, so as a man, I thought, okay, I would not give लेकिन them. परमेश्वर की आत्मा ने समझाया, But the Spirit of God told me, ना 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 ना, don't do ये like गलत this. है। This is wrong. आप सबसे पहले उसे दो, First, go and give to him. ये सबसे बड़ी बात है। This is the most important तो हम thing. गए देने, So I went and दे gave, के आए, and I came back, हमें बड़ी खुशी हुई and I felt good कि हम परमेश्वर की बात मान सके, that I obeyed God क्योंकि वो मेरी मदद करता है because He helps me, जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। especially when I obey Him. जहाँ बड़ा कठिन काम है Yes, it is a difficult दुश्मन task के पास जाना, to go to your उससे enemy, प्यार करना, and to show him उसे love, उसे क्षमा करना, to forgive him, उसके आगे झुकना, to bend before उसको him, गले लगाना, to hug him, उसे फिर भी शामिल करना, and to include him in ये everything. आसान नहीं It's है, not easy. कठिन है, It is difficult. लेकिन फिर भी आपको करना But है still you need to क्योंकि do आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर because रहे you हो। are obeying the अगर will of लंबी उम्र God. चाहते If हो, you want a long life, अगर आप सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो आपको ये आज्ञा मानना and पड़ेगा। if you want happiness in your life, beloved, then you must do बाइबल it. कॉलेज में एक से मेरा झगड़ा हो गया था, I had a fight with somebody in my Bible college, अगला आदमी उसी ने गलती की थी, and he was the one at fault. लेकिन उस रात को मुझे बहुत ही दुख था, But I was grieved that मैंने night, कोई दिन भर खाना नहीं and खाया। I did not eat मैं food. लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, Actually, I don't like fights. मैं and हमेशा quarrels. मेल मिलाप चाहता I हूँ, always like reconciliation. मैं चाहता और लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तुरंत चाहता हूँ समाधान हो And even जाए, if something happens, I want quick reconciliation. लेकिन अगला व्यक्ति जब नहीं समाधान चाहेगा तो बहुत मुश्किल होता है। But when the next party doesn't want, then it's difficult. It take too much time। ये बहुत समय ले लेता फिर है. क्या हुआ, उस रात में मैं बहुत बेचैन था Then that night I was really grieved in my spirit क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर बेचैन था। because Holy Spirit inside of me was grieved. तो मैंने कहा, "हे प्रभु, मेरे अंदर आनंद को उत्पन्न कर।" Then I asked God, God, please give me your तो joy. प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा ही है, जो पवित्र आत्मा ही है जो तुझे शांति, चैन, खुशी, आराम And then the देती है। Lord told me, oh, my Holy Spirit only will और give you जब हम comfort. गलतियां करते हैं And when we do तब पवित्र mistakes, आत्मा हमारे पास से चले जाते हैं। then Holy Spirit leaves us. पवित्र आत्मा सचमुच में आपके वजह से दुखी है। That means the Holy Spirit is मैंने really कहा, प्रभु pleased. मैंने क्या गलती की? Then I asked God, what did I do? गलती तो उस बंदे ने की थी, That person did. वही लाइन तोड़कर आगे आ He गया। was crossing the line. उसे हम इतनी देर से पीछे खड़े थे, लेकिन वो अभी आया और आगे लग गया। He crossed the line and came in front. मैंने तो उसे सिर्फ बोला था ये सही नहीं है, I only told him this is उसने not तो right. मुझे गिरेबान पकड़ के मारना चालू कर But he दिया। took me by my collar and started फिर beating लड़ाई me. हो गई, And then we got दिन into a खराब fight, हो गया। and the day became bad. बाइबल कहती कि तुमने रिएक्ट कर दिया, तुमने Bible taught me that I reacted. तुमने उसकी बुराई को भलाई से नहीं जीता, You did not win him by your goodness. उसे करने देते, You should have let him do, तुम सह लेते, but you should have borne it. तुम्हारी आत्मा भंग नहीं होती। Nothing would have been wrong with तो you. अब तुमने गलती कर दी Now because you did something wrong, तो तुम जाओ माफी so you मांगो। go and apologize. गलती उसकी है, Maybe it is his उसे mistake, चिंता नहीं but है, he's not worried. वो आत्मा में नहीं He's है, not in spirit. उसे आत्मा की चिंता ही He's नहीं not है, worried about the Holy Spirit. लेकिन तुझे है ना, But you have, तो right? तू जा और So माफी you go and मांग। apologize. तो मैं गया माफी So I मांगने, went and apologized. आसान नहीं था, And it was not easy for कठिन me. था, It was पर difficult. मुझे जीवन चाहिए, But I wanted a good life. मुझे जिंदगी I चाहिए। wanted life. तब फिर मैं गया परमेश्वर So के, I went to उसकी God आज्ञा मानी and obeyed God. और मैंने उसके पास जाके क्षमा मांगी। And I apologized with that आज man. तक मैं खुश हूँ, Until now I am happy. कोई मेरे दिल में जरा से भी कोई भी चोट नहीं है, ना दर्द है। I have no scars in my heart about this. कुछ लोग बोलते हैं कि पाशा आप बहुत ज्यादा खिलते हो और यंग होते चले जा रहे, कारण क्या है?
Some people say, Pastor, you look refreshed, renewed, and young every day. हमने कहा क्योंकि मैं दिल में कुछ नहीं रखता हूँ, So I said, because I don't keep anything in my मैं heart. मेरी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुरंत खत्म करता Even हूँ. if I get into a fight, I just भूल go for जाता हूँ. reconciliation and I forget ये everything. टेंशन में नहीं पालना I don't want चाहता. to stay in ये tension. किसी की लड़ाई झगड़ा दिल में ज्यादा देर तक नहीं रखता. So I don't want to keep such things in my तुरंत heart. क्लियर करना है मुझे, Quickly, I want to clear ताकि everything. मैं आराम से So जियो. I can stay in peace. हाँ, गुस्सा भी आता है तो मैं निकाल देता हूँ, Even if I have anger, I just take it क्योंकि out. मुझे फ्री रहना Because है. I want to मैं be बंद free. के नहीं चल I सकता. cannot be bound. उन किसी भी मामलों में बंद के नहीं चलता. I don't want to be bound by any such तुरंत मुझे matters. क्लियर करनी I है just सारे. want to clear कोई straight away. दिमाग में नहीं रखनी I है, don't want to keep कोई in दिल mind. में नहीं रखनी I है. don't want to keep in heart. मुझे क्षमा करना है. So I need to मुझे apologize. क्षमा मांगना पड़े तो मैं क्षमा मांगता And even हूँ. if I need to ask for forgiveness, I will. किसी की नाक रगड़ना हो तो नाक भी रगड़ता हूँ, Even if I have to brush my nose, I will do it. क्योंकि मुझे जीवन चाहिए, I want life. और वो आज्ञा मानने से होता है. And how we get it? By obeying. बहुत जरूरी, अगर आप आज्ञा मानोगे It's very necessary if you obey. तब आप अपने जिंदगी में ये चीजें देखोगे You will witness such things in कि your life. किस तरीके से आपको परमेश्वर जीवन देगा. That how God gives you life. आपके कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, You should not have any enemies. आपका कोई भी बुरा नहीं सोचने वाला होना You should चाहिए. not have someone who thinks wrong about आप you. जाओ, अकेले घूमो, हर जगह फिरो, आपको कोई डर ना हो. Go freely anywhere, but you should not be scared of anything. आज लोगों की जिंदगी कैसी बनी हुई है, बहुत से लोगों की Consider the lives of people today. जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पद वाले हैं, उनको कितना डर है. Who are these officials and people on higher उनके authority? पास में मार गार्ड है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, गन है. They have guard, gun and everything. कितना जीवन डर का है. But they are living a life full of fear. वे परमेश्वर से नहीं डरते, They are not scared वे of God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन They नहीं don't want करते, to obey God. इसलिए उनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है. That's why they have this problem in their life. ये है बहुत महत्वपूर्ण This चीज. is something very important. मुझे और to आपको it. समझना We होगा. need to understand. एक बहुत बड़ी खास बात और हम सीखेंगे Something significant we will कि learn. कैसे हम लंबी उम्र पा That सकते how हैं, can we get a good long life? कैसे लंबी उम्र पा सकते हैं, How we can get a good long life? कि हम सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ठीक पाए So जाएं. we can be made right with God. आइए हम एक और पद पढ़ेंगे. Let's look into another verse. हम कैसे लंबी उम्र पढ़ सकते हैं. How can we get this good long life? बाइबल कहती है, भजन संहिता 92 अध्याय, In the book of Psalms, भज- chapter 92, भजन संहिता 92 अध्याय के 12 पद में, verse 12, 12 पद में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे. the righteous shall flourish like the palm tree, and he shall grow like a cedar in Lebanon. और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. And they will be planted in the house of the Lord and flourish in the courts of our God. वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे. They shall still bring forth fruit in old age, and they shall be flourishing. अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तीसरी बात, इंसान का धर्मी होना बहुत जरूरी है. And the third thing which is very important, a man should be a righteous man. अगर कोई भी धर्मी है, If someone is righteous, परमेश्वर उसका जीवन बचाता है. then God will save his life. आपने देखा होगा कि जब नूह के जमाने में परमेश्वर पूरी दुनिया को नाश करने की योजना बना रहा था, In the days of Noah, when God wanted to destroy the whole तो world, परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया, then God found Noah as तो नूह को righteous. बचा लिया, So he saved उसे Noah जिंदगी दी, and gave him life. बाकी लोगों को मार दिया. But everyone else got killed. इसी तरीके से Same manner, इस दुनिया में in this world, जितने भी लोग परमेश्वर के धर्मी जन हैं, people who are righteous people of God, परमेश्वर उनको बचाते हैं God will save them. और उन्हें खजूर की नाई फलाते हैं And they would be like date palm trees. और लबानोन के देवदार के समान. They would be upright like cedar of Lebanon. तो ये ऐसे बढ़ेंगे. So this is how they would flourish. और फिर धर्मी लोगों का काम तो जानते हो, वे फिर परमेश्वर के घर जाएंगे. And then the righteous people love to come to the house of Lord. केवल धर्मी लोग चर्च में जाते हैं. They only come to house of याद God. रखो, देखिए, जो धर्मी बनना चाहता वो भी चर्च आएगा, The one who's in the making also भले वो comes to पापी the- क्यों ना coming हो, to the church, even if he's a sinner. परंतु वो धर्मी बनना चाहता But है because he wants to be तो वो righteous, चर्च आएगा, he will come. तो वो वहां पर धर्मी बन जाएगा, That's how he will be a righteous क्योंकि person. चर्च के अंदर वचन है,
Because inside the church you will find वचन word, वचन मसीह है and the word is God, और मसीह उसके अंदर आएगा and God will come inside of the और person, वो परमेश्वर से पैदा हो जाएगा, and then he will be born of God, परमेश्वर की संतान बन and he will जाएगा, become the child वो of यीशु के God, लहू से धुल and जाएगा। will be cleansed by the blood of बाइबल Jesus. कहती है कि हमारे धर्मी होने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। Jesus was crucified so that we can be made right with आज God. जितने भी लोग मसीह यीशु में भी धर्मी हैं, People who are in Christ are क्योंकि उनके righteous. पापों का सारा बोझ यीशु ने ले लिया Because God has already taken all their और sins, उनके पाप मिटा दिए गए and their हैं, sins have been erased. क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मान They लिया, have accepted Jesus विश्वास कर and लिया। have faith. इस वजह से उन्हें ये गिफ्ट मिल रहा That's why है they got this gift. कि वे आजाद हो रहे हैं They have gotten उन free पापों से। from those sins. बहुत जरूरी है It's very important कि आप भवन में जाते हो, that you come to the church, परमेश्वर के घर में जाते that you हो। come to the house of बाइबल God. कहती है परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे और परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे And Bible teaches that we would be planted in the house of the God and we would flourish. और फिर वे पुराने भी हो गए, बुजुर्ग भी हो जाएंगे, तब भी वे आशीष के कारण And रहेंगे। even until their old age, they will still bear fruit. ये बिल्कुल सच बात है, And this is really the truth. ये बिल्कुल हो जाएगा आपके And जीवन it will में really happen in your life. अगर आप धर्मी हो, If you are righteous, यीशु मसीह के नाम से, in the name of यीशु Jesus के Christ, लहू से, by the blood of उस Jesus, पर विश्वास करने by से, having faith in उसके Jesus, पीछे चलने by से, walking after उसके Jesus, घर आने से, by coming to the house उसके of वचन को Jesus, सुनने by से, hearing the word of God, संगति करने से in fellowship, आपका जीवन वास्तव में आशीष में होगा। your life would be really a blessed फलोगे life. फूलोगे, लॉन्ग लाइफ मिलेगी। You would be successful and you would flourish. ये बहुत जरूरी है, And it is very important, बहुत खास बात है। very significant. और फिर आगे एक बहुत बड़ी चीज हम बताने जा रहे हैं। And something big I'm going to tell you now. क्या बाइबल हमें समझाती है What is the Bible teaching us? कि बाइबल कहती है निर्गमन उसका 23 अध्याय इसका 25 पद, In the book of Exodus chapter 23, निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 25 और verse 26 25 पद, to 26. इसमें लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। And you shall serve the Lord your God, and he shall bless your bread and your water, and he will take all the sicknesses away from your midst. और फिर 26 पद कहता है तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई वांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। There shall nothing cast their young nor be barren in the land. The number of the days I will fulfill. कितनी बढ़िया बात है This is a great thing. कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे उसके चरणों में, तब परमेश्वर हमें लंबी उम्र देगा। That if we would really praise and sing and worship God at his feet, then God will really give us a long life. और बाइबल का तुम्हारे बीच में से रोग निकालेगा। And Bible even says that God will remove every sickness from the midst of you. कुछ मसीहों, ईसाइयों, विश्वासियों को हजारों रुपए की दवा खाना बड़ा शौक है। But some believers, they want to purchase medicines of high prices. कुछ लोग हजारों से दवाइयां हर महीने खाते हैं। And they are spending money every month on medicines. वो हमेशा डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में रहते हैं। They are always under the supervision of doctors. उनका जीवन हमेशा बीमार वाला जीवन And their है। life is like a life of misery and sickness. ये बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे उनके बीच में से परमेश्वर का रोग दूर कर देगा। But Bible teaches us that people who would worship God, God will remove every sickness from the midst of them. राजा हिजकिय्याह की जिंदगी के बारे में जानते हो, We have heard about the life of King Hezekiah. उसकी मौत की पैगाम उसे पता चला, He came to know about the news of उसे his death. डॉक्टरों ने बताया, And physicians उसको told him कैंसर हो गया था, he had cancer. वो मरने वाला And he was था। about to die. लेकिन क्या हुआ? But what happened? बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के पास आया, But he came to उसने God. परमेश्वर को पुकारा, And he called unto उसने God. प्रार्थना की, And he prayed. उसने आराधना की, He worshipped. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस पर दया की, And Bible says God took pity on उसके him. रोग उसके में से निकाले, And he removed his sickness from 15 him. साल की उम्र उसको बढ़ा दी। And he even gave him 15 years more. ये ऐसा परमेश्वर करता है। And this is what can इसलिए God यीशु do. मसीह के पास जितने भी लोग आए, So everyone who came to Jesus, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, who accepted Jesus जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, and called unto him, वे सब चंगे हो they गए। all got healed. जब हम यीशु के पास आते Because हैं, when we come to उसकी Jesus आराधना करते हैं, and we worship उससे him प्रार्थना and we करते हैं, pray to him उस पर विश्वास करते and we हैं, have faith in him उसके संग समय बिताते and we हैं, spend time with तो him, वो रोग आपकी जिंदगी से निकाल Jesus देता will है। remove every sickness from you. आप और लंबी उम्र जियोगे। You will अलग। even live a long life. एक और खास बात, And one thing more क्या important, चीजें हैं जो हमें लंबी उम्र देते हैं? what
factors can lead to पहला a good long पत्रस life? का 3 अध्याय का 10 पद, When we come to the epistle of 1 Peter chapter 3 verse पहला 10, पत्रस 3 का अध्याय का 10 पद, 1 Peter chapter 3 verse 10, इसमें क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठों की छल की बातें से रोके। for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. और वो बुराई का साथ छोड़े Let him eschew और evil भलाई करे और मेल को ढूंढे और यत्न में उसी में लगा रहे। and do good. Let him seek peace and ensue it. ना यहाँ लिखा है कि एक ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है, यानी जिंदगी की इच्छा रखता है Who is this person who wants life और अच्छे दिन भी देखना and चाहता even है, want to see good days? तो उसे अपनी जीभ को बुराई से रोकना He needs to पड़ेगा, control his tongue. अपने ओंठों की छल की बातों से रोकना पड़ेगा। He need not let any guile come in his tongue. कुछ लोग अपनी जीभ का बड़ा दुरुपयोग करते But हैं। some people misuse their tongue. जीभ बहुत खतरनाक चीज And है। tongue is really a scary thing. आप जीभ से ऐसा कुछ बोल सकते हो, मालूम छुरियां चल जाएं, कत्ल हो जाते हैं। You may murder somebody even through your tongue. अगर सचमुच में जुबान ठीक नहीं है, If your tongue is not right, जुबानों से बहुत लोगों का कत्ल कर देते हैं people kill other people through their tongue और only. यही श्राप आता है। And that's why curses बाइबल come. कहता है कि हमारे जीभ में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों रखे And हैं। Bible says that God has given death and life into our tongue. भजन संहिता 34 अध्याय के 12 पद में भी बाइबल हमें कुछ सिखाती है। In the book of Psalms, बाइबल भजन संहिता 34 अध्याय के 12-13 पद में भी वही chapter बात, 34 verse 12. उसमें लिखा है कि वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। What man is he that desires life and loves many days and that he may see good? अपनी जीभ को बुराई से रोकें Keep your tongue from evil और अपने मुंह की चौकसी करें, and your lips from speaking उससे guile. कोई छल की बात ना निकले। Let no deceit come out तो of your mouth. बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी जुबान के द्वारा अगर बुराई करेंगे The Bible is teaching us that if we will let deceit come out of our और mouth किसी की निंदा करेंगे, and slander somebody किसी को बुरे शब्द बोलेंगे, and speak bad about somebody चोट पहुंचाएंगे, and hurt somebody, अगले व्यक्ति को जैसे ही दुख होगा so when the other person is hurt, आपने श्राप पैदा कर लिया। you brought curses on you. अक्सर आपके जिंदगी में यही चीज आपको हानि देती है। This is what is happening in the lives of many इसीलिए people. बाइबल में लिखा है उसे डांटो जो डांट से बुरा ना माने, That's why Bible says instruct those who don't feel bad on being instructed. और लिखा भी कि बुरा भी मत मानना। And also you need not feel offended. लेकिन कभी कभी लोग फालतू में अधिकार के साथ सही रीति से नहीं डांटते हैं, But some people do not use the right authority and to reprove. बल्कि वे उसको चोट पहुंचा रहे हैं। But they do to hurt the other कुछ लोगों person. को गालियां दे रहे हैं, They want to abuse. तब क्या होगा? Then what will happen? आप गालियां दोगे तो ये अपराध है। If you abuse, then it is a बाइबल में sin. साफ साफ लिखा है कि मुंह से गालियां बकना बंद कर दो। Bible teaches us not to abuse. गाली देने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। People who abuse will not enter the kingdom of आप God. किसी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलिए, Don't use bad words for anybody कोई भी गंदी बातें मत बोलिए, or anything that is evil. आप अपने जुबान से किसी की निंदा मत Do कीजिए। not slander anyone from your बाइबल mouth. कहती है तुम सिर्फ तारीफ करो, But Bible says only praise, तुम सिर्फ इज्जत करो, respect, अच्छे शब्द बोलो, use good words, तुम उनको उठाओ, exalt them, ऊंचा करो, uplift them, हमेशा अपने जुबानों से सराहना प्रशंसा की बात करो, appreciate from your tongue. आप हमेशा थैंक यू बोलो, Say always thank you. अच्छी बातें बोलिए, Say good things. कोई बुरी बात मत Do बोलिए। not produce anything wrong out of your अगर mouth. आप अपने मुंह से बुरी बुरी बात बोल रहे हो, Because if you bring evil out of your mouth, सोचो कुछ लोग माता पिता को बुरा बोलते हैं, imagine some people even curse their parents. ये आपके लिए नुकसान And पहुंचाएगा। it is wrong for you. It is कुछ wrong लोग for अपनी you. माता पिता के लिए गालियां देते हैं, Some people abuse their parents. कुछ लोग अपने बड़ों का अनादर करते हैं, Some disrespect the अपने elders. बड़ों से अनाप शनाप बोलते हैं, And they just speak filthy things. अपने बड़ों से बदतमीजी से पेश They आते हैं। insult them. ये सब जो अपनी जुबान से करते हैं। All these things that they do कुछ with their लोग mouth. छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं,
Some people don't know even how to talk according वो to अपने their age. बड़ों से बड़ी अनाप शनाप बात करते हैं। They speak anything to their elders. कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बुरे से पेश आते Some हैं, people are harsh with their children. उन्हें भी बुरी तरीके से गालियां देते They हैं। abuse their children. कुछ लोग अपने मित्रों के साथ बुरा पेश Some आते हैं, people are abusive towards कुछ their लोग friends, अपने पासवान के साथ भी to गलत their काम। pastors. ये तमाम प्रकार की बातें हैं कि अगर अपनी जुबान से आप कुछ भी गलत अनाप शनाप बोल रहे हो If you are letting any deceit come out of your tongue, तो अपनी जुबान को चौकसी करनी then होगी। you need to control your tongue. अपने मुंह को बुराई से रोकना पड़ेगा, You need to control your tongue from producing कहीं evil. से छल की बात ना निकले, Let no deceit be in किसी your को mouth. चोट ना Do not पहुंचे। hurt anyone. बाइबल कहती है लंबी उम्र चाहिए अगर, You want a long life. तो अपने मुंह पे अपना जो है सचमुच में मास्क लगाना Then जरूरी set है। a guard over your mouth. आजकल मास्क नहीं लगाओगे तो क्या है, If you won't put mask these days, what तो will मर happen? जाओगे। You may die also. 2000 का फाइन देने के बाद ही मर जाओगे। Even after paying fine, you may सोचो die. मास्क लगाना क्यों जरूरी है, So why putting on mask is तो important? कहीं ऐसा ना हो कोरोना के वायरस मुंह में घुस जाएं। You need to, because you prevent yourself. सोचो आपको अपने मुंह की चौकसी करनी है, So you need to set a guard over your mouth. कोई बुरी बात मत बोलो, Do not speak किसी को evil. बुरा मत बोलो, Do not hurt anyone. आप अच्छा अच्छा बोलो, Speak good. शुभ शुभ बोलो, Speak auspicious क्योंकि things. जुबान में जीवन भी है और आपकी मृत्यु भी है। Because there is power in your tongue to give life or to give अच्छा death. बोलोगे, If you speak good, जीवन मिलेगा, you will get life. बुरा If बोलोगे, you speak bad, तो क्या होगा, death would come. बाइबल कहती मृत्यु मिलेगी। The Bible says death would बाइबल कहती come. जो मुंह से निकलेगा Whatever comes out of your mouth, बुरी बुरी चीजें, things that इससे defile, मनुष्य अशुद्ध हो जाएगा it defiles the man, और इंसान की लाइफ खत्म हो जाएगी। and life would be shortened. परमेश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो, May God give you a long life, आप अच्छे स्वस्थ जीवन जियो, that you live a good, healthy life, बहुत अच्छा जीवन जियो, and live a good life. लेकिन याद रखो कैसे होगा, But remember how it's going जो to हमने happen. आज आपको निर्देश दिए, What I have instructed you to उन do, सब बातों को अगर ध्यान if रखोगे you would keep in mind, तब आप हमेशा खुश you रहोगे। would always be happy. आपसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है So what is कि God आप expecting परमेश्वर of का you? डर मानो, Have His fear. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। Obey Him. परमेश्वर की अगर आज्ञा का पालन करोगे तो आपकी जिंदगी में आशीषें आएंगी। Because if you will obey Him, you will get blessings. और फिर परमेश्वर चाहता है कि सचमुच में हम लोग धर्मी बन जाएं। And then really God wants us to be right with Him. और बाइबल कहती है कि हम सब लोग ईमानदारों किसी को धोखा न दें अपनी जुबानों के द्वारा। And that we should be faithful and we should not deceive anyone through our और mouth. बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। And then Bible says the righteous person will live by faith. अगर आपको सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास है If you really have faith in God, तो आप जिंदा रहोगे। you will live. यीशु मसीह पर विश्वास करो, Trust in Jesus. कभी नहीं मरोगे। You will never बाइबल die. कहती है जो मुझ पर विश्वास करेगा Bible says the one who believes in वो me कभी नहीं will मरेगा। never die. बाइबल कहती है कि सचमुच में यीशु मसीह के पीछे चलने में अनंत जीवन है। And Bible says walking after Jesus will give you eternal life. इसलिए आज अपना जीवन यीशु को दे So दो, give your life today to Jesus. मन फिरा लो, Completely पापों को repent. छोड़ दो Leave sins और जिंदा रहो। and live. उसने आपको जिंदगी दी है, He's given you life, अच्छी जिंदगी जियो good life. और उस दुनिया में भी अच्छी जिंदगी And even मिलेगी। in that आओ world, अपने जीवन को यीशु के हवाले कर let's दो, surrender our lives to Jesus. मन फिराओ Let's repent और अपनी जुबानों को बुराइयों से रोको and bridle our tongues. और विश्वास करो Live a life of faith कि वो आपके साथ है, that He is with you. वो आपको हर जरूरत पूरी He करेगा। will fulfill all your उसकी needs. आराधना करो, Worship एक Him. पवित्र जीवन बिताओ, Live a sanctified उसकी आज्ञा का life. पालन करो, Obey Him. उसका भय मानो, Fear Him. आपको लंबी उम्र You मिलेगी। will get a good long प्रभु life. आपको आशीष May दे। God bless अपनी you. आंखें बंद करें। Let's close our eyes. स्वर्गीय पिता, हम Amen. धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। अपने लोगों को आशीषित कर, उनकी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोके खोल, जो भी परेशानियां हैं उनकी दूर कर। सबसे बड़ी परेशानी मौत का डर उनकी जिंदगी से निकाल दे। अगर सचमुच में वो पवित्र हैं, धर्मी हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। मौत आना तय है, आज नहीं तो कल, लेकिन मौत आने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी को हम जांच लें, परख लें, ठीक ठाक है नहीं। मरने के बाद हम तेरे राज में प्रभु जी सचमुच में जा पा रहे हैं या नहीं, ये देखना है अभी और इसी वक्त। हे प्रभु, अपने बच्चों से बात कर, उनकी ज़िंदगी की सारी कमजोरी निबलताएं दूर कर। आज पूरे दिन भर मदद कर, हर एक जन मन फिराए, पापों को छोड़ दे, पवित्र जीवन बिताए। जो कोई बीमार हो चंगा कर, किसी की जो कमी घटी पूरी कर, पूरी तौर से आज़ाद कर उनके दुखों को।
और जितने भी लोग प्रभु जी संघर्ष कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनकी फाइनेंस को दूर कर, और जितने भी लोग नौकरी बिजनेस नहीं उनको मिलने पाए और सबको हर चीज़ मिलने पाए, विशेषकर उद्धार और मुक्ति। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, सबको तेरे हवाले करते हैं। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नज़र आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजो, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।